Good morning, everybody. Namaste to all. I am Vijay Kumar. Today, I am going to share with you the last lesson of class 12th. Means this is the title of the last lesson, but it is the first chapter of class 12th Flamingo book. The title is The Last Lesson by Alphonse Daudet. About the Alphonse Daudet, he was born on 1840 and died in 1897. About the author, he was born in Nemi, attended school in Lyon, began his writing at the age of 14, forced to earn at 17. The situation forced him to start earning at the age of 17. Contributed to Figaro, worked as secondary to the Duke, married Julia Alfred in 1867. Daudet joined army to fight in the Franco-Prussian War. France's defeat had profound impact and reflected in his stories. Contes du Lundi, Monday Tales, a collection of stories published in 1873 in London, and shows the change in France's fortune through the eyes of a young boy. Here, young boy is Alphonse Daudet. We are going to discuss about the theme of this study. The last lesson relates to culture and language. Each and every country has its culture and it has language. In one country there may be different types of languages, but the national language will be only one. Has money of the imperial colonial power, lust for ruling the world influencing culture and identities, pathos of the likely language crisis, language an asset more so in times of crisis, because it gives us the way of expressions our feelings, fear, shame and agony of losing freedom of learning and using mother tongue. Nobody wants to lose the mother tongue. If mother tongue is being snatched, it means expression is being snatched. And expression is being snatched, it means this is the exploitations of the fundamental rights. Some of the scenes of this Persian Franco War you may find out here. What was the condition? A scene from the Franco-Persian War you may see here. What was the condition those days? This you may find out. War Memorial, France. This is one of the epitome symbol. War Memorial of France. The story begins. There was a boy named French. One day he started for school very late the morning and was in a great dread of a scolding, especially because Mr. Hamel had said that he would question them on participles. इसमें एक ऐसे बच्चे की कहानी जिसका नाम फ्रेंच है, मेन कैरेक्टर है, और मिस्टर हैमल उसके टीचर हैं. फ्रेंच को पढ़ाई में दिल नहीं लगती थी, लेकिन वो स्कूल रोज़ जाता था. एवरी डे ही यूज टू गो टू द स्कूल. मिस्टर हैमल वॉज हिज टीचर एंड वन डे ही गेव हिम one of the topic that he prepare participle, and I will ask you some questions. Now the very next day he is going to the school in a great dread of scolding. ये डर के साथ जा रहा है कि आज तो फिर हमको डांट लगेगी.
For a moment he thought of running away and spending the day out of the doors. कुछ देर के तो सोचा कि चलो हम स्कूल जाते ही नहीं, बाहर भाग जाते हैं, क्लास बंक कर देते हैं. It was so warm, so bright, the birds were chirping at the edge of the woods. What was the scenario has been given while he was going to the school? मौसम बहुत ही सुहावना था, चिड़ियाँ चहक रही थी पेड़ों पर की टहनियों से. नेक्स्ट वी सी फेवरेट थिंग्स ऑफ फ्रेंच, chirping of birds. He amused of the chirping of the bird. उसने उसको अट्रैक्ट कर लिया. नेक्स्ट वी फाइंड ड्रिलिंग ऑफ पर्शियन सोल्जर्स. जो पर्शियन सोल्जर जो प्रैक्टिस कर रहे थे आर्म्स लेकर के, उस रास्ते में उसको उसका नज़ारा नहीं मिला. पहले तो उसको ये मिला कि बहुत सारे बर्ड्स चहक रहे हैं, क्यों ना मैं इसको देखता रह जाऊं. फिर नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ा तो उसने पर्शियन सोल्जर्स को देखा कि वो ड्रिलिंग कर रहे थे. दीज आर द सीन्स दैट ही हैड बीन वॉचिंग व्हाइल ही वॉज गोइंग टू द स्कूल. कलेक्टिंग बर्ड्स एग्स, बर्ड्स के एग्स को कलेक्ट करना, ये सारे उसके मन पसंदीदा कार्यक्रम थे जो उसको चाहता था. नाउ यू सी नेक्स्ट पिक्चर इज हियर. इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द शॉ मिल द पर्शियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग. एक शॉ मिल जिसे आरा मिल कहते हैं, जहाँ लकड़ी काटा जाता है, उसके बैक में एक फील्ड था जहाँ पर सारे पर्शियन सोल्जर्स ट्रेनिंग ले रहे थे. इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द rule for participants, but French had the strength to resist and hurried off to school. तो ये सीन पार्टिसिपल्स के बारे में जानकारी देना या रिप्लाई देना उससे कहीं ज़्यादा बेहतर लग रहा था. फिर भी वो बड़ा तेज़ी से स्कूल की तरफ बढ़ता हुआ चला गया. नेक्स्ट, नाउ ही कम्स टू ए बुलेटिन बोर्ड. एक चौक होता है जहाँ के बुलेटिन बोर्ड पे आता है. यू मे फाइंड आउट द बुलेटिन बोर्ड हियर. वी सी इन द स्कूल्स ऑल्सो, दीज आर द बुलेटिन बोर्ड्स where we put our notices. When he passed the town hall, there was a crowd in front of bulletin board. For the last 2 years, all his bad news had come from there. The lost battles, the draft, the orders of the commanding officer, and the thought to himself without stopping, what can be the matter now? जब वो बुलेटिन बोर्ड के बाद पहुंचता है लड़का, तो उसके विचार में एक ऑटोमेटिकली निगेटिव बातें आ जाती है कि यही बुलेटिन बोर्ड है जहाँ से सारा नियम कानून और ऑर्डर पास होता है. पता नहीं आज यहाँ कहाँ है. युद्ध होता था तो भी इस नोटिस बोर्ड में हार और जीत के बारे में लगता था, और आज भी पता नहीं क्या ऑर्डर है. बट ही इज़ अनेबल टू रीड. लेकिन दुख की बात है कि वो इस लायक नहीं है कि उसको पढ़ सके और समझ सके. लेकिन फिर भी वहाँ पर खड़ा होता है, कुछ लोगों से पूछता है, लेकिन उसको जवाब सही से नहीं मिल पाता है. एज ही हरीड बाय फास्ट एज ही कुड गो. जितना जल्दी हो सकता था वो प्रयास करता है जाने का. ब्लैक स्मिथ वॉचर हु वॉज देयर विथ हिज अप्रेंटिस रीडिंग द बुलेटिन कॉल आफ्टर हिम, डोंट गो सो फास्ट बब, यू विल गेट योर स्कूल प्लेंटी ऑफ टाइम. बब मीन्स हियर यंग बॉय, स्मॉल बॉय. तो वहाँ पर दो ब्लैक स्मिथ और जो वॉचर थे उन्होंने बड़ा मजाक में उसका कि आज मत जाओ स्कूल, तुमको बहुत समय मिलेगा स्कूल जाने के लिए. उन्होंने जो कमेंट मारा, फिर भी ये समझ नहीं पाए कि ये दोनों क्या कह रहे हैं. यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन देयर वाज ए ग्रेट बसल व्हिच कुड ही हर्ड आउट इन द स्ट्रीट. द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क्स, लेसन्स रिपीटेड इन द यूनिजन वेरी लाउड with their hands over their ears to understand better. And the feathers, teacher's great ruler rapping on the table, opening and closing of the desk. Now here the scene of the school has been explained here. While he reaches to the school, he finds that everything is unusual, not usual. जो रोज़ वहाँ हुआ करता था, जब वो पहुँचा तो उसको लगा कि ऐसा हो नहीं रहा है वहाँ पे. एवरीथिंग इज अनयूजुअल.
वो बताता है कि जब मैं स्कूल पहुंचता था, देयर वाज ए ग्रेट बसल, वहाँ पर हल्ला गुल्ला शोर शराबा होता था। कुड बी हार्ड आउट इन द स्ट्रीट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द डेस्क, बच्चे जो डेस्क को खोलते हैं लगाते हैं उसकी आवाज़ स्ट्रीट में भी जाती थी, लेकिन आज चारों तरफ शांति थी। बच्चे जोर जोर से पढ़ रहे होते थे, उसकी आवाज़ आती थी, ग्रुप में याद करते थे, उसकी आवाज़ आती थी वेरी लाउड। विद देयर हैंड्स ओवर देयर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, वो अपने हाथ को कान पे रख के कहता है कि मैं आज क्या देख रहा हूँ, मेरे कानों में ये सारी आवाज़ नहीं आ रही है। ना टीचर का वो डंडा आ रहा है रैपिंग वाला जो ये बताए कि टीचर गुस्से में पटक रहे हैं टेबल पर, इसकी भी कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। Nothing. Teachers, ruler, rapping lessons, repeated illusion, nothing was there. But now it was all the still he had counted on the commotions to get to his desk without being seen. तो सोचा कि उसके दिमाग में जो आ रहा था कि हलचल होता है वो नहीं हो रहा है। धीरे धीरे वो अपने क्लास की ओर बढ़ा कि हम चुपचाप जाते हैं, क्लास में बैठ जाएंगे। बट of course the day everything has to be as quiet as Sunday morning and he had to open the door and go in before everybody, but nothing happened. Mr. Hamel saw him and said very quickly, go to your place quickly little French, we were beginning without you. He jumped over the bench and sat down at the desk. जब वो पहुंचता सोचा कि चुपके से हम क्लास में पीछे से पहुंच जाएंगे, बैठ जाएंगे, लेकिन उसके टीचर मिस्टर हैमल ने उसको देख लिया और वो बोलते हैं कि हम तुम्हारे बगैर क्लास करने जा रहे थे, शुरू करने जा रहे थे, चलो तो अच्छा हुआ तुम आ गए। नाउ द चाइल्ड फ्रेंच सरप्राइज्ड कि वाई माई टीचर हैड नॉट स्कोल्डेड मी। अब वो सरप्राइज करता है कि आज क्या बात है, हमारे टीचर ने मेरे को आज डांटा भी नहीं। समथिंग इज रॉन्ग। He saw his teacher had put on his beautiful green coat, frilled shirt, and the little black silk cap, all embroidered, that he never wear except on inspection and prize days. When he reached to the class, when he sat down by the permission of his class teacher, he found that today his teacher is really in a fantastic dress. ब्यूटीफुल ग्रीन कोट वो पहने हुए थे, फ्रिल शर्ट पहने हुए थे, लिटिल ब्लैक सिल्क कैप पहने हुए थे, एल जितना भी था उसमें एम्ब्रॉयडिंग किया हुआ था। ही नेवर और एक्सेप्ट इंस्पेक्शन डे, वो कभी कभी ये टाई कोट लगाया करते थे, पहना करते थे। तो उसको आश्चर्य लगा, क्या बात है, आज तो ना प्राइज़ सेरेमनी है ना इंस्पेक्शन डे है, तो हमारे टीचर आज ये क्यों पहने हुए हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा था। Anyway, but the thing that surprised him most was to see on the back benches that were always empty the village people sitting quietly like the students. इससे भी ज़्यादा फ्रेंच को आश्चर्य हुआ कि आज क्या बात है, पीछे का बेंच हमेशा खाली रहता था, वहाँ पर हमारे गांव के बुजुर्ग लोग आकर के बैठे हुए हैं, शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं। ओल्ड हॉजर विथ हिज 3 कैमर्ड हैट, वो 3 कोना वाला जो हैट पहनता है वो ओल्ड हॉजर जो था वो पहने हुए आया। द फॉर्मर मेयर भी वहाँ पर थे, फॉर्मर पोस्ट मास्टर वहाँ पर थे, एंड सेवरल अदर बिसाइड, सब उसके पीछे क्लास रूम में पीछे के बेंच पे बैठे हुए थे। एवरीबडी लुक्ड सैड एंड हॉजर हैड ब्रॉट ऑन प्राइमरी बुक। जैसे कि हम मनोहर पोथी की किताब पढ़ते जिसमें ABCD और लिखा रहता है, उसी ढंग से हॉजर ने एक किताब लाया ऐसे करके, जो बहुत पहले किताब थी, पुरानी किताब थी। एंड ही हेल्ड इट ओपन इन हिज नीज, उन्होंने खोला अपने नीज के ऊपर। ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेज, और चश्मा लगा के अब उसको वो पढ़ना शुरू करते हैं। मिस्टर हेमल माउंटेड ही चेयर एंड द सेम सीरियस एंड जेंटल टोन which he had used to him said। तो वो पढ़ के सुना रहे थे लैंग्वेज के बारे में,
उसके बाद मिस्टर हेमल की बारी आती है और वो चेयर पे बैठते हैं। एंड द सेम सीरियस एंड जेंटल टोन, बहुत ही गंभीर और भद्र आवाज़ में उन्होंने कहा, माय चिल्ड्रेन, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। बड़ी रूंधी आवाज़ों में, गंभीर आवाज़ों में, डिटैचमेंट जो हुआ था उसके पेन में उनकी आवाज़ें रुकी रुकी लग रही थी, थमी थमी लग रही थी। उन्होंने कहा, माय चिल्ड्रेन, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। ये मेरा अंतिम क्लास है, आज के बाद मैं आपको नहीं पढ़ा पाऊँगा। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम द बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ ऑलसेकेन-लॉरेन। ये ऑलसेकेन-लॉरेन दो भाग जो था वो फ्रांस से जर्मन के कब्ज़े में चला गया था। तो जर्मन के लोग ये ऑलसेक और लॉरेन के लोग थे, उनको ज़बरदस्ती ऑर्डर आया था बर्लिन से। बर्लिन इज़ द कैपिटल ऑफ जर्मनी। तो उस समय ये आया ऑर्डर कि नहीं, आप यहाँ पर भी अब जर्मन ही पढ़ना पड़ेगा उन लोगों को, फ्रेंच लैंग्वेज नहीं चलेगा। द न्यू मास्टर कम द नेक्स्ट डे। तो इनकी छुट्टी हो गई, चूँकि अभी तो पढ़ाई होना नहीं था, तो न्यू मास्टर जो फ्रेंच का था वो आने वाला था। दिस वाज द एंड ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज। ऑन दैट डे द विलेजर्स हैड ऑल्सो गॉन टू स्कूल टू रिग्रेट फॉर नॉट लर्निंग मोर एंड थैंकिंग मिस्टर हेमल। तो विलेजर जो लोग स्कूल नहीं भी गए थे, वे सारे लोग उस दिन वहाँ पर गए मिस्टर हेमल को धन्यवाद देने के लिए, या आपने बड़ा ही वफादारी के साथ 40 ईयर सर्विस दिया और हमारे बच्चों को, हमारे जनरेशन्स को फ्रेंच का शिक्षा दिया है। इट वॉज ही लास्ट लेसन एंड ही हैड हार्डली लर्न दिस ओन लैंग्वेज। उन लोगों को ये दुख हो रहा था कि मेरी लैंग्वेज थी फ्रेंच और मैं उसको पढ़ नहीं पाया। इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू रीड एंड राइट दिस ओन लैंग्वेज। ये संभव नहीं था उन लोगों को पढ़ना। ही थॉट वेरी सैडली ऑफ हिज केयरलेसनेस। उनको अपने ऊपर पछतावा भी हो रहा था कि मैंने ये क्या कर दिया। मोर ओवर ही वॉज वरीड अबाउट नॉट लर्निंग हिज ऑन लैंग्वेज इन फ्यूचर। और उनको इस बात का इससे भी ज़्यादा पछतावा था कि अब भविष्य में कभी हम इस लैंग्वेज को नहीं पढ़ पाएंगे। एज मिस्टर हेमल बिगेन द क्लास ही टोल्ड द स्टूडेंट्स एंड द विलेजर्स दैट इट वॉज हिज लास्ट लेसन as the learning of French will be stopped in the school and the next master join them। वो बताए, क्लास को बताए, विलेजर्स को बचाए कि आज फ्रेंच टीचिंग का लास्ट डे है, इसके बाद अब तो जर्मन के टीचर आएंगे और वो बच्चों को पढ़ाएंगे। फ्रेंच वाज अनेबल टू टेल एनीथिंग अबाउट द लैंग्वेज एज ही हैड नॉट रेगुलरली अटेंडेड द क्लास एंड वाज फीलिंग सॉरी फॉर दिस। सबसे ज़्यादा अगर झटका किसी को लगा था तो फ्रेंच को ही लगा था कि स्कूल तो आता था लेकिन उसको सीखने की इंटरेस्ट नहीं थी। तो आज सबसे ज़्यादा दुखी वही था कि काश हैड आई लर्न द लैंग्वेज, काश मैं अपनी मातृभाषा सीख लिया होता तो आज मुझे इतनी परेशानी नहीं होती। मेरे को क्या पता कि आज सर चले जाएंगे, लेकिन अब तो सर जा रहे हैं। मिस्टर हेमल रिमाइंडेड द मिस्टेक्स टू द स्टूडेंट्स। उन्होंने जाते जाते बाद में सारे स्टूडेंट को मिस्टेक्स के बारे में याद दिलाया। एंड सेड दैट दे शुड फील सॉरी फॉर नॉट लर्निंग। उनको एहसास होना चाहिए कि उन लोगों ने जो लोगों ने फ्रेंच नहीं पढ़ा है उनको इस बात का एहसास होना चाहिए कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। ही ऑल्सो टोल्ड द पेरेंट्स फॉर द मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर वर्ड्स फॉर नॉट सेंडिंग देम to school regularly। Finally he blamed himself for the loss of their learning। इतना ने पेरेंट्स को भी बोला कि जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, आप हमें नहीं समझ पाए या हम आपको नहीं समझ पाए, आपने अपने बच्चों को रेगुलरली स्कूल नहीं भेजा, जो लॉस हुआ उसके लिए आप दोषी नहीं हैं, हम ही दोषी हैं। Once he blame also he takes himself। Now come next। Mr. Hamel taught with patience and students heard with full confidence, understood everything very easily। मिस्टर हेमल ने बहुत ही धैर्य के साथ बच्चों को पढ़ाया और सारे स्टूडेंट बड़ा अच्छे से सुना करते थे, बड़ा विश्वास के साथ अंडरस्टैंड एवरीथिंग वेरी इजीली, बहुत आसानी से समझा करते थे। बिकॉज ही वे ऑफ टीचिंग वाज वेरी इजी।
It seems as if Mr. Hemal was determined to teach all he could. He taught grammar, writing, history and alphabet respectively. वो बहुत कुछ पढ़ाना चाहते थे, जितना संभव हो उन्होंने पढ़ाया, ग्रामर भी पढ़ाया, राइटिंग भी पढ़ाया, हिस्ट्री भी पढ़ाया, अल्फ़ाबेट भी पढ़ाया. द स्टूडेंट्स रिस्पॉन्डेड ही टीचिंग पॉजिटिवली. स्टूडेंट भी उसके टीचिंग को पॉजिटिव में लिया करते थे, रिप्लाई दिया करते थे. इट सीम दैट दे अंडरस्टूड वेरी वेल. देयर वाज पिन ड्रॉप साइलेंस इन द क्लास. जब वो स्पीच दे रहे थे तो उनके क्लास में बहुत ही ज़्यादा पिन ड्रॉप साइलेंस था. फ्रेंच हर्ड द पिजन्स गोइंग ऑन द रूफ एंड सपोज देम दे वेर सिंगिंग इन जर्मन. जो पिजन्स जो वो चहक रहे थे रूफ पर, तो उनको लगा कि वो जर्मन लैंग्वेज में गा रहे हैं. नाउ वी कम टू द पॉइंट हियर. मिस्टर हेमल टोल्ड देम अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज एंड फिनिश्ड इन हिज लेसन. उन्होंने लैंग्वेज के इम्पोर्टेंस को बताया मिस्टर हेमल लास्ट लेसन में. एट मिड डे द चर्च क्लॉक रैंग एंड इट वाज टाइम द पर्शियन सोल्जर द स्कूल. और इसी बीच मिड डे में चर्च का क्लॉक घंटा, घर से घंटा की आवाज़ आई और ये टाइम था पर्शियन सोल्जर्स इंटर्ड द स्कूल. और सारे पर्शियन सोल्जर इस स्कूल में आ गए. उनकी लास्ट सब थी, बड़े ही रूंधे गलों से उन्होंने लिखा. मिस्टर हेमल होपलेसली स्टूड फ्रॉम हिज चेयर. अपने चेयर से खड़े हो गए. टूक ए पीस ऑफ चॉक. एक चौक लिया. चूँकि वो बोल नहीं पा रहे थे, इतना दुखी थे, मन भरा हुआ था, गले चौक कर गए थे आंसुओं से. ब्लैक बोर्ड पर जाकर उन्होंने लिखा विवे ला फ्रांस, मीन्स फ्रांस जिंदाबाद. दिस वॉज हिज लास्ट वर्ड द टीचर हैड रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड. So, at last Mr. Hemal could not speak any word further and stood against the wall, pointed with his hand. School is dismissed, you may go. This was the last sentence of Mr. Hemal. So, I hope you like this very nicely, everybody. Thank you. And this is my advice to all of you. If you like it, please do not forget to give one press on like. And if you have not subscribed, please you must subscribe it. That's all. Thank you and have a nice day everybody. Thank you all.